और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज होम्योस्टैटिस, अ स्टेडी स्टेट। हमारे बॉडी में जो भी मेंटेन होता है फ्रॉम ऑस्मोरेगुलेशन टू द बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसके पीछे की सारी प्रोसेसेस वो हम देखेंगे। ओके, द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द नर्वस सिस्टम। We noted how the body function in coordinated manner to bring about any required effect or change. You also learned that about the hormones and how they work in a way so that the body knows when to start, when to speed up, when to slow down, and when to stop. An event occurs inside the body. In this lesson, you will study about the phenomena called homeostasis, which means keeping steady state. अब steady state हमारे body में कैसे maintain होता है वो हम देखेंगे। Homeostasis operates a variety of needs inside our body, and one such need is regulation of body temperature called thermoregulation, जो कि हमारा body temperature में maintain रहता है वो। In this lesson, you mainly cover the various types of thermoregulation. Concept of homeostasis. Homeostasis is a phenomena which maintain the body regulated in its functional to keep internal condition as stable as possible. Okay, जैसे जितना स्टेबल हो सके उतना स्टेबल बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी जो भी प्रोसेसेस करती है उसे कहते हैं हम होम्योस्टेटिस। Homeostasis is necessary because body cell did not have suitable condition for around and proper functioning. उनके बॉडी के लिए एक प्रॉपर suitable environment चाहिए प्रॉपर functioning के लिए। These conditions include the presence of proper concentration of chemicals, proper temperature and suitable pH. ये सारे conditions हैं जैसे कि कोई भी chemical concentration या फिर hormone हो या फिर enzyme हो, proper temperature और suitable pH जैसे कि acidity of salinity inside the cell. But these conditions inside our body as well as inside other organisms keep fluctuating with narrow range. Okay, वो बहुत कम रेंज में फंक्शन करते हैं। टॉलरेंस टू एनी चेंज, अगर कोई भी चेंज होता है फ्रॉम दिस रेंज डिफर्स इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, तो डिफरेंट अफेक्ट शो करता है अगर ये पीएच में या फिर टेम्परेचर में, बॉडी टेम्परेचर में अगर चेंज होता है। ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट अ वैरायटी ऑफ मेजर्स टू कोप विद सच चेंजेस। अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स अलग-अलग टेम्परेचर पर खुद को एडॉप्ट करते हैं, अपनी बॉडी को एडॉप्ट करते हैं क्योंकि अपनी बॉडी proper functions में ला सके। To understand the concept of homeostasis, consider the following for example. For example, drinking water and keeping water balanced. All kinds of weather, your blood and other body fluid must maintain a particular percentage of water. हमारी body में fixed percentage of water fixed रहना चाहिए। If the volume of water in the body tends to rise, अगर हमारे बॉडी में वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, the excess pass out in the urine. Okay, excess will pass out in the urine, and if it tends to fall short, अगर कम है, the more water is withheld inside the blood to extend requirement. Thus the body maintain a steady temperature of water content. इसकी वे में इसी प्रोसेस से वो बॉडी का वाटर वॉल्यूम मेंटेन रहता है। In hot summers, you feel thirsty at regular intervals. You drink lots of water or even cold drinks, yet you do not urinate much. The urine passes out more concentrated. This is because during hot weather you lose more water through perspiration, but your body needs to maintain a requisite amount of water कि dehydration ना हो, उसकी वजह से the water is withheld in by passing out only little and concentrated urine. In cold winters you do not feel much thirsty. You do not drink much large quantities of water, but you may take hot drinks only to keep warm. During such days, you urinate more frequently and urine passed out is more dilute. तो as upon the temperature, body temperature कैसा है उसके बेस पर भी पता हमारा बॉडी मेंटेन करता है कि किस वे में हमारी बॉडी की जो प्रोसेसेस है वो प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे। एग्जाम्पल 2 जो कि हमें एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, eating sugar and keeping steady sugar level in blood. Suppose you have been consuming too much sugar in food, beverage and sweets. Presuming you are otherwise normal, आपकी बॉडी नॉर्मल है और आप ज्यादा शुगर लेवल इंटेक कर रहे हो, your body will handle the excess sugar by storing it in form of glycogen in the liver. Okay, अगर आप ज्यादा शुगर ले रहे हो तो आपकी बॉडी उसको स्टोर कर देगी in form of glycogen. At some other time when you are fasting,
अगर आप फास्ट कर रहे हो एंड डूइंग मच फिजिकल वर्क और फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हो, योर ब्लड विल सुगर, वो सुगर जो स्टोर्ड सुगर है, then stored glycogen back into the unstable form, that is glucose, to fill the gaps and restore the normal blood sugar level. Third example is maintaining normal steady state of blood alkalinity. Sometimes you eat too much salt, okay, जब आप बहुत ज़्यादा salt खाते हो in your food, but your blood normally maintains on particular level of alkalinity. आप जितना भी salt खाओ लेकिन आपका blood का pH है वो 4.34 से लेकर 4.43 के बीच में ही रहेगा, which is only slightly alkaline. Any extra salt consumed is passed out through urine, as it is cannot be stored in the body. At some other time you have been eating too little salt, or you are losing much of it through sweating. Your kidneys will hold back the required quantity. जो किडनी है वो यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करेगी जो कि सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करेगी. मैनेजिंग द नंबर ऑफ आरबीसीज, तो आरबीसीज का नंबर भी यहाँ पर मैनेज होता रहता है. अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट पर्सन अबाउट 5 मिलियन 5 to 10 power 6 आरबीसीज यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. Per cubic millimeter of blood. Whenever the plain dweller visit a hill station, okay, visit a hill at high altitude without any break journey in between, is likely to feel exhausted for a couple of days. Later, the person becomes normal. At high altitudes, the atmospheric pressure is low, and the amount of oxygen carried by this normal RBCs is insufficient. वहाँ पर ऑक्सीजन कम डिजॉल्व रहता है, हम ऑक्सीजन इंटेक कम कर पाते हैं. दैट्स व्हाई जो आरबीसीज होती है वो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट इनसफिशिएंट रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी 2-3 दिन तक भी एग्जॉस्टेड फील करती है. विद इन डे और 2 डे द बॉडी एड्स मोर आरबीसीज. आप नॉर्मल कंडीशन पर आ जाओगे तो आपकी बॉडी और आरबीसीज ऐड करेगी टू पिक अप द नॉर्मल रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन. When the same person returns to the plane, okay, when same person returns to the plane or lower altitude, the higher RBC level that was acquired at the hill now being at to take up oxygen in excess, which is harmful. The body readjusts the RBCs which get reduced in number of become stable at the original level. Okay, जैसे कि आप नॉर्मल प्लेन पर आओगे तो आपका ब्लड आरबीसी प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा और जो भी डेफिशिएंसी आरबीसी की वो फुलफिल हो जाएगी. Warming and cooling of the body. During the hot summer, you wear light clothes, you perspire a lot, and you sit under a fan or under a tree to feel comfortable. Your body is trying to cool against the high temperature. Okay, तो आप light clothes पहनने से हमारी body जो है वो cool feel करेगी. Then there is a reverse side, that is a cold winter. In spite of wearing a thick warm clothes, you still feel cold. Okay, आप warm clothes पहनते हो फिर भी आपको cold feel होती है. In midday time you go out in the sunshine to warm yourself. इस तरह से कोल्ड में आप सनशाइन में आप सनलाइट से आप एक्सपोजर देते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी वार्म हो सके. एट नाइट यू कवर योरसेल्फ विद अ थिक ब्लैंकेट. यू आर डूइंग ऑल दिस टू मेंटेन अ वार्म इनसाइड स्टेडली टू योर बॉडी. ओके, आप अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं. इन द बोथ द अबव सिचुएशन यू आर ट्राइंग टू रेगुलेट योर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. यू विल लर्न मोर अबाउट थर्मोरेगुलेशन सब्सिक्वेंट सीक्वेंस. आई टेक अ सीक्वेंस नाउ. Limits of heaters. Why it is necessary? Okay, जो thermal regulation है वो necessary क्यों है और limitations क्या है? The living organisms can normally survive only within a certain range of temperature of about 0 to 45 degrees Celsius. However, organisms tends to make adjustment if they happen to be places of higher or lower temperature. At above 45 degrees Celsius, the organism may suffer. अगर 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्रोटीन से वो डिनेचर हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन एंड सेल्स सफर्स लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारी बॉडी बहुत हार्मफुल हमारी हो जाएगी. देन बिलो एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है. At time below the freezing point, the cell may burst by the formation of needle-like ice crystals inside and between the cell. Cell है वो needle-like शेप फॉर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से सेल है जो बर्स्ट हो जाएंगे एंड बिटवीन द सेल्स एंड द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. द अबाउ stated effect due to temperature changes are because enzyme functions normally with certain enzyme. जो हमारे बॉडी में एंजाइम है क्योंकि हर एक फंक्शन के पीछे रहते हैं, रिस्पांसिबल रहते हैं, तो वो एंजाइम 0 to 45 मींस ऑलमोस्ट 30 to
37 के बीच में वो वर्क फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर्स के पे वो फंक्शन नहीं कर पाते और बॉडी सफर करती है। एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम अगर हाई टेम्परेचर हो गया फिर लो टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिफरेंस अफेक्ट्स होगा हमें। एंजाइम्स कैरी आउट ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring inside our body। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स है वो ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। दे हैव सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बीच में कैसे परफॉर्म। एट 0 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम्स आर इनएक्टिव। एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन डबल्स एट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर बिटवीन 4 and 40 डिग्री। तो 4 और 40 के बीच में होना ही चाहिए और द बेस्ट फंक्शन है 30 to 37। Okay? On warming, whenever the temperature rises, the enzymes start working faster. If the temperature becomes too high, the enzyme becomes work too rapidly, produce unwanted intermediate chemicals and do not require ones. Okay, तो required enzymes वो form नहीं होंगे। At still high temperature, the enzyme get denatured और बहुत high temperature पर वो denature हो जाएंगे, destroy हो जाएंगे। The enzymes act very narrow temperature, best at around 35 to 40 degrees Celsius। इतने के बीच में टेम्परेचर में वो एंजाइम बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। ऑन कूलिंग द टेम्परेचर लोअर द ऑप्टिमम टेम्परेचर द एंजाइम बिकम्स लेस एंड लेस एफिशिएंट। एट फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर द एंजाइम्स may turn into totally inactive। Classification of animals based on their temperature tolerance। ओके, तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टेम्परेचर्स पर क्या-क्या क्लासिफाई किया गया है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है एंडोथर्म जो कि इनसाइड अर्थ ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स जो कि वार्म ब्लडेड कहते हैं। ओके, गर्म खून वाले। एंडोथर्म आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेंटेन अ बॉडीज टेम्परेचर पर्सपेक्टिव इन टेम्परेचर टू द सराउंडिंग के बेस पर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। टू अदर टर्म्स ऑफन यूज्ड इज homeotherms and warm blood। okay, so which refers to keeping the same temperature। तो homeotherms है वो अपना बॉडी टेम्परेचर सेम रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। and the warm blooded which felt warm whenever touched। if you hold a pigeon in your hand or rabbit by touching it, you are intensely cold inside you will find they are warm। next is ectotherm, those animals whose temperature rises and falls with rise of surrounding temperature। okay, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनका भी बढ़ जाएगा। ओके, मींस रिस्पेक्ट में वो बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। All animals other than birds and mammals are ectotherms। Example: fish, frog, lizard, insects and earthworms, etc. are the two terms। क्योंकि यहाँ पर poikilotherms जो कि होते हैं cold-blooded animals, which means they are cold when touched। if you hold a frog in your hand you will feel, and touch cockroach they are always colder than your body। characteristics of endotherms। okay, जो heat regulating mechanism है वो है birds और mammals में होती है। we are able to maintain the temperature within a narrow range that is 37 to 39 degrees Celsius। okay, so 37 to 39 degrees Celsius के बीच में अपने body temperature को maintain करते हैं irrespective of the outside temperature whether intensively cold or several body। birds are usually slightly warmer than mammals। जो bird होते हैं वो warm रहते हैं mammals से। and effective insulation mechanism जो कि body temperature maintain करने के help करते हैं। birds have feather to trap air for preventing heat loss। when cold the feather are raised to trap more air to increase insulation। the mammals have two sources of insulation, hairs and subcutaneous under skin fat। the hair trap the air when it's too cold, the hair are raised, boost flesh and increase insulation। the under skin fat prevents a conduction of heat outside the fat layer inside the thicker in the colder region, inhibitants for the better prevention of heat loss and inner in those living in warmer regions to allow greater heat loss। how some endotherms cope with unfavorable temperature। तो polar bears and जो penguins है, there are several other animals live in the ice covered polar region। they maintain their body temperature by generating heat and preventing heat loss through thick fur and under skin fat। वो fat और skin की वजह से अपने body के temperature को maintain करते हैं। camel, desert rats are several जो कि high temperature में भी रह सकते हैं। जो कि camel is a desert dweller
on hot climate, it needed to possess more heat loss mechanism and cut down the heat removing ones. Most of its skin has no fat layer, but look at the hump, it stored a huge bulk of fat, only a reserved food. Squirrels, goats and pigeons जो example है, live in a moderate temperature to heavy existing body temperature, the changing condition of the outside and adjust both winter and summer and normal temperature. हमारे जैसा वो maintain करते रहते हैं. Humans too are endotherms. When required, we supply our natural heat regulating mechanism and artificial method like clothing using fan, bathing, room heating and room cooling, etc. Some ectotherms and how they cope unfavorable temperature conditions. Frogs hibernate under the ground in cold winters and estivation during hot summers to avoid heat and escape from cold. Hibernation और winter sleep को करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी रेस्ट पर आ जाए और जब वापस समर आए तो वो फंक्शनल हो. During hibernation, the basal metabolic rate remains low. The fishes live in a cold water. Water seldom undergo extreme temperature changes like worms, land. Still, fishes either make minor adjustment in the body parts to minimize the heat loss or heat gain. If you are unable to do so, they migrate to less harsh regions. Lizard and crocodile bask in open sun to warm them during cold weather. When hot, they move to the shades. When feeling hot, crocodiles even open their mouth wide and allow evaporation of water from cooling purposes. Sometimes like panting of the dog. Honeybees during cold winter huddle together inside the hive to conserve body heat collectively. During hot summer, they operate a kind of desert cooler by sprinkling some water on the honeycombs and fanning with their wings for cooling the honeycomb. Next is the mechanism of homeostasis of body temperature, जिसकी normal core body temperature. The starting point in any homeostasis is the identification in set or the normal point. The set point of human body temperature is taken as 37 degrees Celsius, which is also called normal core body temperature. The core body temperature refers to the temperature of a combined portion of the trunk, head, upper part of the and the legs. And body temperature otherwise is not uniform throughout. पूरे body में अलग different body temperatures रहते हैं. The surface skin temperature usually lowest, सबसे कम रहता है because it is considered due to the variety of external and internal conditions. The armpit usually records 1 degree less. जो armpits होती है हमारे वो 1 degree less than temperature inside the mouth. Mouth के एक temperature कम रहती है. The anal temperature is 1 degree higher than core body temperature से. जो anal temperature होता है वो एक temperature ज़्यादा होता है. In very young children, the clinical thermometer is placed inside the anus and the temperature recorded is reduced by 1 degree to assess that if child is having any fever. For a practical purpose, the oral mouth temperature is normal body temperature. Whenever the core body temperature departs the normal temperature, the body takes corrective measures. For example, if the temperature falls, if the body का temperature fall हो रहा है, there is increased heat production in the body along with the prevention of heat loss. And if body temperature rising, there is a cooling to give out excess heat. You will read such more step in detail for subsequent. Mechanism क्या होता है, ऐसा करते कैसे है? The principal heat regulating center is in hypothalamus. Hypothalamus जो कि वो control करती है a part of forebrain which part है thermostat. When a body has to face cooling between the normal temperature, it switches on or speed up the heat producing processes. And जब ज़्यादा जरूर नहीं होती cold होती है तो shut off the heat losing ones. Okay, when the body faces overheating during the summer and intense physical exercise, it accelerates the cooling process which switch off the heating producing ones. Okay, heat producing one को बंद कर देती है. Keeping warm in cold temperature, ठंडे temperature में warm रखती है. Preventing loss of body temperature. This is achieved in two ways. एक पहला है vasoconstriction. Vasoconstriction means narrowing the blood vessel, जिसकी वजह से blood supply to the skin is reduced. There is less loss of heat by conveying the conduction and radiation. जो हाथ सुन्न हो जाते हैं ना उसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा ठंडी होने की वजह से जो blood vessels है वो सिकुड़ जाते हैं, narrow हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम blood पहुंचेगा skin तक तो कम blood की heat loss होगी. If we reduce blood vessels and sweat glands the skin, there is less or no secretion of sweat and thus there is no evaporation of water and no loss of heat.
Have you ever observed if you look pale or bluish? This due to reduced blood supply to the skin caused due to vasoconstriction. Next is by posture. At times we feel cold or we hold our fan cold tightly on our chest while standing or sitting. While sleeping in bed, we often hold our arms and legs closely folded near the body at the curved posture. जिसकी वजह से जो हीट लॉस हो रही है वो मिनिमाइज हो सके, जनरेटिंग मोर हीट टेम्परेचर. ओके, तो शिवरिंग भी एक एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. द मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज और मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड in the body cell. The muscular activity is also increased during the shivering. Sometimes cool in hot weather. When outside temperature is high or when a person engages in strenuous physical activities, there is an overproduction of heat in the body. The extra heat is given out into जो extra heat है वो ऐसे release होती है. There is increasing heat radiation from the body. This is brought about increasing blood supply to the skin through vasodilation. Increasing blood flow in the skin allows more heat to reach the body and radiate out. Blood बढ़ा देता है, blood का supply skin तक. And increased sweating. Increasing blood supply to the skin through vasodilation makes water available to the sweat glands. जिसकी वजह से वो sweating करते हैं. Sweating होने से the fans by themselves do not cool the air. With movement the air increasing evaporation and sweat to produce more cooling. जिसकी वजह से cooling ज़्यादा होता है. Components of homeostasis. Okay, components है set point to the norm. This is the normal level of any factor in the body. The set points may have a small or large range. For example, normal set points of human body temperature is approximately 37 degree Celsius. Okay. Sensors, जो कि consist of sensory parts, perceive the change in set points. The sensors thermoelectric compress the heat receptors. The skin hypothalamus are part of brain which perceives the temperature of the flowing blood. Integrating center. The center is a part. Integrating center is a part which receives the information about change in a set point of particular state. It interprets it and sends the command to correction. The thermoregulation increases the hypothalamus plus some adjoining part of the brain जो मिलाकर हमारी body temperature को maintain रखते हैं. Next is effectors, जो कि effect हो जाता है skin blood vessel जो कि सिकुड़ जाती है, sweat gland जो कि हीट में ज़्यादा फंक्शन हो जाता है, एंड स्केलेटल मसल्स विच शिवर्स, तो ये हो जाते हैं इफेक्टर जो कि इफेक्ट्स देते हैं, एक्चुअल इफेक्ट जिसके वजह से अगर हीट लॉस करने या फिर हीट लॉस को कम करना है वो फंक्शन परफॉर्म होता है थर्मोरेगुलेशन में. ओके, दिस टेबल जो कि पूरा समझा है. टाइप्स ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो कि फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल में हेल्प करते हैं. तो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन changes in blood circulation like vasodilation or vasoconstriction, sweating or not sweating, increase or decreasing in cell metabolism, shivering, etc. All these adjustments are not under control of field. हमारे field में कंट्रोल नहीं रहता. कि behavior में आ जाता है. If you conscious or subconscious feel आप comfortable feel नहीं कर रहे तो fan ourselves, promoting अपने आप को fan करते हो. Move to any steady place or cooler place, hotter temperature में. Stretch out our limbs and resting glands. जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आप अपने limbs को stretch out करते हो. और जब cold होता है तो movement to warmer places, आप warm places में जाना पसंद करते हो. Prevent entry into the wind cold, so window खुलना नहीं पसंद करते. Wrap ourselves in a blanket and fold both our arms and legs tight to close body, जिसकी वजह से body heat loss ना हो सके. Like the feedback mechanism, the feedback in the living system, negative to the reverse of condition to the positive and direct condition. In thermoregulation, the kind of feedback mechanism operating in the negative type, any deviation of the set point have been reversed to bring it back to the normal condition. Normal condition को वापस लाते हैं. Therefore, a command has to be given to the organs concerned with the manner and deviate correctly to the brought back the normal state. The positive feedback is very rare in the living system. One such is that the coagulation of blood. This process includes several steps of succession. The first, the feedback does not revive the set point, so it is not a negative feedback. Instead, it produces the next and the third, so on until the last one completes the process by plugging the cut in the blood vessels. All the feedback mechanism in blood coagulation of the positive one. Okay, तो ये एक positive feedback था जिसकी वजह से हमारी body temperature different है. Winters different seasons में अपने आप को मेंटेन करती है और बॉडी का जो भी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर रहती है.
In this chapter we are going to see some principles of genetics. Okay, तो पहले कुछ टर्म्स हम देख लेंगे एक्चुअल वर्ड जेनेटिक्स क्या है, और इस चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो हम लेंगे इस इंट्रोडक्शन में से. It's common observation that the seed of mango tree germinates to form a new mango plant. जो mango plant है उनका जो सीड होता है उसको अगर हम शो करेंगे तो आगे जाकर वो मैंगो ट्री ही बनेगा, ना कि बनियान ट्री या फिर कोई, या फिर डॉग गिव बर्थ टू पपीज ओनली. ओके, तो डॉग है वो सिर्फ पपीज को ही बर्थ से देता है, एंड ह्यूमन बीइंग्स को भी ह्यूमन बीइंग्स भी ह्यूमन को ही बर्थ देते हैं. तो इसके पीछे रीजन है दैट समथिंग द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू इनहेरिट पेरेंटल कैरेक्टर. तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स हो गए ह्यूमन बीइंग्स, उनके जो कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग में पास हो रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी. ओके, द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग to inherit parental characteristic is termed as heredity, and the study of science of heredity and the reason governing the variation between the parents and their offspring is called genetics. Okay, तो उसको वेरिएशन क्या आ रही है उसको जब हम रीजन उसके पीछे का करते हैं तो उसे हम वो फील्ड को बोलते हैं हम जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज अ seek to answer some question like two offspring of same parents look different. मींस एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं वो डिफरेंट लुक हो रहा है, बट सम हैव डार्क एंड अदर हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन. तो उनकी स्किन है वो एक की फेयर होती है और एक की डार्क होती है. इन अदर वर्ड्स दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. जो चेंज आ रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या फिर एक ही जनरेशन में दो बच्चे हैं, एक ही पेरेंट के दो बच्चे, तो उसमें जो चेंज आ रहा है उसे कहते हैं हम वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड. This lesson deals with the heredity and some reason behind the variation amongst the individual of same species है, लेकिन उनमें भी जो change आ रहा है. आपने देखा होगा कि इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं लेकिन ट्विंस को छोड़कर बाकी सारे एक दूसरे से डिफरेंट है कोई ना कोई वे में. तो वो आ रहा है change due to variation. It includes diagnostic techniques to find out basis for types of sex determination, inheritance of blood groups, hereditary disorders, and given site of the human genome as amniocentesis. तो यहाँ पर कुछ हम टेक्निक्स देखेंगे कि किस वे में बेसिकली वो डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है कि इस वे में हम पता लगा सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो किसकी वजह से आ रहा है, या फिर वो वेरिएशन ब्लड ग्रुप में है, सेक्स में है, या फिर मेल है या फीमेल है, और उसके वजह से आती है कोई हेरिडिटरी डिजीज. तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती है, एंड इट गिव्स एन अपसाइड टू द ह्यूमन जीनोम. अम्नियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है वो भी हम देखेंगे क्या है और कैसे. हेरिडिटी एंड वेरिएशन व्हेनेवर एन इन्फेंट इज बोर्न इन अ फैमिली. कोई भी अगर इन्फेंट बोर्न होता है, इन्फेंट विद स्मॉल बेबी, इन्फेंट बोर्न होता है इन फैमिली, द रिलेटिव गिव्स अ वंडर अबाउट द रिसेम्बलेंस ऑफ इन्फेंट्स आई, फेशियल फीचर्स, कंप्लेक्शन, कलर ऑफ हेयर विद द. आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब भी कोई नया इन्फेंट बॉर्न होता है तो जो हमारे नेबर्स होते हैं वो कहते हैं कि इनकी आंखें इसकी मम्मी जैसी है और उसका नाक पापा जैसा है. ओके, तो ये जो कंपैरिजंस करते हैं, ओके, तो वो यहाँ पर एक रिप्रेजेंट करते हैं कि हेरिडिटी है कि पेरेंट्स के ही कैरेक्टर्स मिक्स होकर बच्चे में आए. द सोर्स ऑफ सच रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंस इन द जीन्स. तो यहाँ पर जीन्स एक आपने नया वर्ड सुना होगा, तो जीन मींस जो चीज. ओके, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है वो किसके वाया आता है, जीन के वाया आता है. जीन इज अ वेहिकल, हम मान सकते हैं कि जीन इज अ वेहिकल व्हिच ट्रांसफर्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम फादर मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. जो इन्फेंट है उसमें they pass down from parents to children and so go on generation to generation. Okay, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पर वो पास होते रहेंगे जीन्स. आप एक साथ समझो तो जीन इज अ वेहिकल which carry all the characters, mixed characters to the infant. infant तक सारे characters को लाते हैं. This inheritance of genes is termed heredity. Inheritance means पेरेंट्स के ऑफरिंग में पास होना. इस हेरिटेंस को यहाँ पर हम कहते हैं, इस इनहेरिटेंस को यहाँ पर हम कहते हैं जेनेटिक्स. ओके,
तो न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फीचर्स अकॉर्डिंग टू जीन्स इनहेरिटेड बाय देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें जो जीन्स आई है फ्रॉम पेरेंट्स, ओके, तो वो उस वे में अपने आप को डेवलप करते हैं। द ट्रांसमिशन, ओके, तो यहाँ पर जो टेबल में दिया है वो तो आपको पहले से पता है कि इंपॉर्टेंट होता है। जो भी टेबल में उसमें डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस आएंगे। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ओके, एक जनरेशन, अब ये जनरेशन आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट जनरेशन वर्ड भी यूज कर रहे हैं, तो हम थोड़ा देख लेते हैं जनरेशन। तो यहाँ पर तुम हो, ओके, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये तुम्हारी जनरेशन है, ओके, तो हम मान लेते हैं तुम्हारी जनरेशन को नाम देते हैं मी। अब ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारी मम्मी, ये हुई जनरेशन ए। अब फ्यूचर में आपके बच्चे होंगे, ओके, तो वो मेल या फिर फीमेल हो गए, तो हो गई जनरेशन सी। मींस फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ओके। तो इस वे में जनरेशन टू जनरेशन ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है। It is a further observed that siblings from the same parents, okay, जो आपके सगे भाई बहन हैं, are unique and different from each other except their identical twins। जो identical twins रहते हैं वही अपने siblings से सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर शो करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सिबलिंग, जो भी ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे दो पेरेंट्स के, वो एक अपने ही वे में यूनिक रहेंगे और बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे उनमें। वेरिएशन मींस द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन मींस जो चेंज आ रहा है, वेरिएट हो रहा है, ओके। तो वेरिएशन का मीनिंग ये होता है कि क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स और बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम पॉपुलेशन। वेरिएशन इज पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉपुलेशन में वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट हैज सर्वाइवल वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन। तो जो एक यूनिटी में रहेंगे और सबके पास वेरिएशन मींस डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होगी, उनके डिफरेंट ही वे होंगे लाइफ को जीने में। तो यहाँ पर वेरिएशन एक सर्वाइवल वैल्यू शो करता है। दिस इज बिकॉज इफ एनवायरनमेंट चेंजेस, ओके, तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इफ एनवायरनमेंट चेंज सम इंडिविजुअल्स मींस कुछ इंडिविजुअल जिनमें कुछ वेरिएशन है, मे बी एबल टू अडॉप्ट अ न्यू कंडीशन, ओके। तो वो अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, जो कि वेरिएशन का होना, वेरिएशन का प्लस पॉइंट है कि अगर आप में वेरिएशन होगी तो आप एक न्यू कैरेक्टर को अडॉप्ट कर पाओगे। If you are not able to adapt, then you will exist and save the population from dying out. Variation arise due to the mutation, okay? तो mutation यहाँ पर एक न्यू टर्म, तो हम देखेंगे mutation क्या है। Okay, उससे पहले एक हम प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे जो जेनेटिक्स है यहाँ पर, ओके। तो जेनेटिक्स काम कैसे करता है, जेनेटिक्स का बेसिक क्या है, ओके। मदर और फादर के में से फादर का डीएनए, एक मिनट, ओके, ये फादर का डीएनए और फादर ये मदर का डीएनए, ओके, ये प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ओके। तो एज अ ह्यूमन बीइंग्स दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ओके, दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो सेक्स सेल्स फॉर्म होंगे वो फादर का एक डीएनए, एक ऐसा डीएनए होगा, ओके, हाफ बॉन्ड वाला,
और मदर का एक हाफ डीएनए होगा। दिस इज ओके। तो ऐसे ये फॉर्म हुए हमारे हैप्लॉइड। ये था 2n, ये था 2n, ये फॉर्म हुआ n। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कैसे होगा? दे फर्टिलाइज। ओके, फर्टिलाइज। तो ये जो हाफ डीएनए है वो यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट होगा और ये हाफ डीएनए वो ऐसे ज्वाइंट होगा। ओके, तो एक न्यू डीएनए फॉर्म हुआ। ओके, यहाँ पर पापा पे फादर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे मदर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू डीएनए। न्यू डीएनए यहाँ पर फिनिश हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये न्यू डीएनए जो फॉर्म हुआ है ये कहाँ पर होगा? ओवम। ओके, जो एग होता है, एंड देन जो ओवम है हमारा, ओके, तो ओवम यहाँ पर, ओवम यहाँ पर आ गया। ओवम, ओवम विल यूटेरस। ओके, ये हमने यूटेरस। तो ये हमारा जब यूटेरस होता है वहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिखा रहा हूँ कैसा क्यों होता है। ओके, तो जो ओवम है वो यहाँ पर ट्रांसप्लांट होगा। ओके, ट्रांसप्लांट, एंड देन दिस ओवम कन्वर्टेड इनटू zygote, एम्ब्रियो। ओके, इसके बीच में बहुत सारे स्टेजेस है, बट फॉर बेसिक नॉलेज, zygote देन एम्ब्रियो देन न्यू बॉर्न बेबी या फिर इन्फेंट या फिर इन्फेंट। ओके, न्यू बॉर्न बेबी डेवलप होगा। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर देखोगे तो आप सोचोगे कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है, जीन्स कहाँ है? ओके, जो हमने पढ़ा था कि जीन है वेहिकल है जो कि पेरेंट्स से इन्फेंट में कैरेक्टर्स लेकर आते हैं। तो जीन हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली इट इज। ओके, तो यहाँ पर जो ये फॉर्म हुआ है, ये जो फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म जो हाफ डीएनए, ओके, एंड डीएनए, वो क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है, पहले तो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में होते हैं हिस्टोन्स। ओके, देयर इज अ बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक इन नेचर, जिसके ऊपर डीएनए रैप्ड रहता है। डीएनए को अगर आप तोड़ोगे तो वहां डीएनए को और आप स्प्लिट करोगे, जैसे मैंने न्यूक्लियस को स्प्लिट करके उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वैसे डीएनए के अंदर यहाँ पर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। इन अदर वे आप देखोगे दैट ग्रुप ऑफ डीएनए यहाँ पर जीन रिप्रेजेंट करता है, तो आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा। क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पर डीएनए जो है, ओके, यहाँ पर एक डीएनए क्रोमोसोम है, वो डीएनए प्लस जीन्स। ओके, तो जीन यहाँ पर दोनों एक ही है बाहर, तो यहाँ पर वो एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो डीएनए है वही यहाँ पर जीन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, उसे हम अलील्स भी कहते हैं। ओके, उसे हम अलील्स भी कहते हैं, ALL, अलील्स, कैरेक्टर्स। तो जो डीएनए है वही कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है और उसे ही उसके अंदर ही जीन प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम डायरेक्ट हम डायरेक्ट डीप में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करते डीएनए को समझेंगे, देन हम देखेंगे कि क्या जीन है। अभी हम म्यूटेशन देख रहे थे कि व्हाट एक्चुअल द म्यूटेशन इज। ओके, तो नई नई टर्म आ रही है, इसलिए म्यूटेशन की डेफिनेशन तो यह है दैट
सडन चेंज इन डीएनए। डीएनए में कोई भी टाइप का चेंज होना जिससे कहते हैं हम म्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है वो यहाँ पर होता है म्यूटेशन की वजह से, डीएनए में चेंज आने की वजह से, दैट इज सडन चेंज इन जीन्स डीएनए। Variation also arise because genes get shifted and exchanged during meiosis at the time of formation of gametes। जो formation of gametes होता था जब दोनों फादर और मदर के डीएनए या फिर जीन्स है वो एक दूसरे के साथ फॉर्म होकर न्यू जीन्स फॉर्म, ओके, नया कैरेक्टर्स फॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो इंटरचेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से न्यू वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यू वेरिएशन है इन्फेंट में वो कैसे आ सकती है, तो गिविंग न्यू राइज टू न्यू कॉम्बिनेशन। एट फर्टिलाइजेशन दिस इज अ रैंडम मिक्सिंग ऑफ पैटर्न। ओके, तो आप एक फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दैट इज अ रैंडम मिक्सिंग ऑफ पैटर्नल मींस फादर एंड मैटरनल मींस मदर क्रोमोसोम्स विद डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशन। सच सोर्स ऑफ वाइब्रेशन वेरिएशन which is the most common, that is called genetic recombination means फादर का और मदर का जीन है, डीएनए है, वो रिकम्बाइन हो रहा है जिसकी वजह से इस प्रोसेस को नाम दिया गया जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ओके, तो हेरिटेबल वेरिएशंस जनरली अराइज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन। हेरिटेबल मींस फादर टू मदर जो कैरेक्टर्स आ रहा है या फिर कोई डिजीज हो या फिर कोई भी कैरेक्टर हो, तो वो यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से आएंगे या फिर म्यूटेशन की वजह से आएंगे। ओके, यहाँ पर जो अब ये एक्सपेरिमेंट जो हम देखने वाले हैं वो हुआ था अप्रॉक्स 1822 और 1844 के बीच में। सर जॉर्ज ग्रीगर मेंडल, ओके, जो है ऑस्टियन मॉन्क, जो कि अपने चर्च के गार्डन में उनका फार्म था, एक फार्म था, वहां पर उन्होंने पी जो प्लांट था उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, वो एक मैथ्स के बैकग्राउंड के नॉलेज था, उनको मैथ्स पढ़े थे, लेकिन उन्होंने जेनेटिक्स क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो हम देखेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट था और क्या क्या रिजल्ट्स हुए थे। एन ऑस्ट्रियन मॉन्क वाज हु यूज्ड अ गार्डन पी, दैट्स अ पीजम सटाइवन। ओके, तो हम पी देखते हैं, उनका साइंटिफिक नेम है पीजम सटाइवन। For his experiment from plant breeding and published it on 1865 और 1865 के टाइम पर उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की on that plant breeding. Okay, his work however was independently rediscovered in 1900। उन्होंने 1865 में पब्लिश किया था और उनका जो काम था वो वापस रीडिस्कवर हुआ 1900 में। Okay, 1900 में along with Mendel's death। Okay, तो मेंडल की तब डेथ हो चुकी थी by Zassermik, Correns and Eugedaveris। ओके, तो ये तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो मेंडल ने जो बुक लिखी थी उनकी जो थियरीज थी वो सारी सही थी और मेंडल को सही प्रूव किया था। बट सिंस द मेंडल वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट प्रिंसिपल्स, जो मेंडल था वो प्रिंसिपल को सजेस्ट करने वाला पहला साइंटिस्ट था, तो दैट्स व्हाई उन्होंने उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो जो एक्सपेरिमेंट था वो हम देखेंगे। Mendel designed his experiment in a such way that a pure tall variety of pea plant could be crossed to pure dwarf variety। उन्होंने नोटिस किया कि जो टॉल प्लांट की हाइट थी, जो टॉल पी प्लांट थे और जो शॉर्ट पी प्लांट थे, उनके बीच में कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करवाया। ओके, हम देखेंगे कि क्या है पॉलिनेशन। ओके, तो बताऊंगा मैं जो रिवर्सन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि दो प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन कैसे होता है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन कैसे होता है। The anther from flower of tall plant are removed with the stigma dusted with pollen from flowers of dwarf plant। Okay, means control pollination करवाया। The reverse experiment was also carried out, that is an anther of flowers born on dwarf plant were removed on that stigma and dusted from the pollen and flowers of tall plant। Okay, तो जो पोलन्स थे उनके जो स्टिग्मा थे, मींस एक मेल फ्लावर होता है एक फीमेल फ्लावर होता है, तो फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो जो पी प्लांट थे
उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, तो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते थे। तो एक में से स्टिग्मा को निकालकर उनके एपोलन को लेकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर स्प्रिंग किया, जिसकी वजह से कंट्रोल पॉलिनेशन हो सके। इन द फॉलोइंग स्प्रिंग सीड्स फ्रॉम न्यू प्लांट्स वर कलेक्टेड एंड सोन, और उनके जो सीड्स थे वो कलेक्ट किए और फिर उसे सोन किए, जिसकी मींस उगाने का ट्राई किया। Then Mendel found that all plants of this generation were first failure, means नाम दिया गया F1 जनरेशन, तो वो सारे टॉल थे, ओके, grew to be tall plant। मींस जब आप टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट को जब आप क्रॉस करवाते हो, तब जो F1 जनरेशन होते हैं वो मेंडल ने कंक्लूड किया है कि वो सारे टॉल थे। The following year, after the seeds had been sown, he found that the 3/4 of these plants were tall and rest are brown। और वापिस जो नेक्स्ट F1 जनरेशन थे, उन्होंने वो F1 जनरेशन में सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा कि जो एक प्लांट को छोड़कर मींस 3:1 रेशियो दे रहे थे। मींस F2 जनरेशन जो थी वो 3 टॉल थी और एक जो थी वो ड्वार्फ प्लांट था, ओके, एक ड्वार्फ मींस हाइट में छोटा प्लांट था। In this way, he tried to cross pea plants differing in a 7 such contrasting characters or traits। ओके, यहाँ पर traits का अगर characters को इस वे में pea plant के जो 7 characters थे, उनको उन पे एक्सपेरिमेंट कर उन्हें नोटिस किया, जिसकी वजह से जो 7 कैरेक्टर्स थे वो थे रेड एंड व्हाइट फ्लावर, एक्सिलरी फ्लावर एंड टर्मिनल फ्लावर। रेड एंड व्हाइट फ्लावर मींस फ्लावर ऑफ कलर, एक्सिलरी फ्लावर एंड टर्मिनल फ्लावर के फ्लावर की पोजीशन, देन येलो सीड्स वर्सेस ग्रीन सीड्स, ओके, येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स, राउंड सीड्स एंड रिंकल सीड्स, देन जो ग्रीन पॉड वर्सेस येलो पॉड, and plant with inflated pods versus constricted, okay, तो inflated flower and plants with constricted pod, okay। then जो 7th कैरेक्टर था वो था tall plant and short plant। तो इन 7 कैरेक्टर्स को पूछा जाता है एग्जाम में, कितने कॉन्ट्रास्ट, इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओके। तो plant with these contrasting characters is existing a variety of self pollination, so that generation after generation they express only one type of feature, okay। तो यहाँ पर self pollination हो रहा था, that's why cross involves plants different in inherited by one contrasting character only, that is a monohybrid cross। एक ही कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस करवाएंगे तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। मेंडल ट्राइड टू क्रॉस इनवर्ट 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, लेकिन जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मींस डायहाइब्रिड क्रॉस करवाने का ट्राई किया, ओके। तो 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेकर ट्राई किया, तो फिर लॉ मेंडल्स ने सर मेंडल ने लॉज दिए, प्रिंसिपल्स दिए इनहेरिटेंस के, और उसमें कहा गया द फर्स्ट लॉ था द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योर गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ प्योर गैमेट्स, जैसे कि एक फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब फॉर्मेशन हो रहा होता है गैमेट्स का, गैमेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, the 2 chromosomes of each pair separated into the 2 different cells which form gametes। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और गैमेट्स फॉर्म करेंगे। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ एंड ऑलवेज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और सेम वे में सारे जो भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें यही लॉ फॉलो होगा। The 2 factors of pair pass into the different gametes, जो कि दोनों गैमेट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स शो कर रहे होंगे क्योंकि वो डिवाइड हुए होंगे। देन ईच गैमेट रिसीव्ड 1 पेयर ऑफ फैक्टर, और जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो जो गैमेट फ्यूज हुआ है तो उनमें जो कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे वही जो आगे जो न्यू जनरेशन है उसमें पास हो गए, एंड अ पेयर ऑफ फैक्टर एंड द गैमेट्स आर प्योर, और जो वो गैमेट्स होंगे वो प्योर होंगे कि कोई भी मिक्स नहीं होगा। जैसे कि टॉल, मान लो कि जो गैमेट ने मेंडल ने जो पोलन ग्रेन्स स्प्रिंकल किए थे स्टिग्मा पे, तो वो एक गैमेट एक टॉल को और दूसरा गैमेट शॉर्ट को शो कर रहा होगा, या फिर टॉल और इन्फ्लेटेड पॉड, ऐसा कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, वो प्योर रहेगी। नेक्स्ट जो लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके। तो यहाँ पर कहा गया था
कि ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ऑफ मैनी ट्रेट, ओके, जब बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, देन इट इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन, एक ही पेयर ऑफ जीन से वो कंट्रोल होके व्हेन टू जीन ऑफ अ पेयर ऑफ द सेम काइंड जैसे ब्राउन, ओके, और दो जीन है और एक ही कैरेक्टर को शो करे, ओके। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कि आई कलर, ठीक है, एंड हेयर कलर, और ये दोनों कैरेक्टर्स को छोड़कर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो एक ही जीन से ट्रांसफर होंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर से भी एक कैरेक्टर आता है और फादर से भी एक कैरेक्टर आता है, तो यहाँ पर जो एक ही कैरेक्टर के दो जीन है, तो इनमें से जो डोमिनेंट रहेगा वो एक्सप्रेस होगा, और जो दूसरा है उसे सप्रेस कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मदर डोमिनेंट रही तो मदर का आई कलर होगा वो आप में, जो कि मींस नेक्स्ट जनरेशन का इन्फेंट है, उसमें शो होगा, एक्सप्रेस होगा, और फादर का जीन डोमिनेंट हुआ तो फादर का आई कलर है वो इन्फेंट में एक्सप्रेस होगा, okay? तो when the two gene of a pair of a same kind, okay, तो दो जीन है सेम काइंड के कैरेक्टर के लिए, तो when a pair of chromosomes have gene controlling the same feature in two different forms, means रेड कलर भी है और फ्लावर कलर भी है, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। यहाँ पर होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस बताया गया कि एक जीन, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन, तो वो हुआ होमोजाइगस, और बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए एक जीन, तो वो हुआ हेटेरोजाइगस, ओके। तो यहाँ पर होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कहा गया कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है तो हम उसे होमोजाइगस कहेंगे, और बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए एक जीन है तो हम उसे हेटेरोजाइगस कहेंगे। द फैक्टर्स और जीन on red and white color alternative form the same. And the second law was inheritance maintained when the two gene of a pair represent contrasting characters expressed one is a dominant, okay, जो dominant रहेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या फिर मदर का कैरेक्टर या फिर फादर का कैरेक्टर हो, जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा।